विल स्टार्ट कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, हाउ व्हाट आर द चेंजेस दैट आई नीड टू डू सो दैट द मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड. ओके, मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड. अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं. पहले हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज द पावर इन दिस, व्हाट इज द पावर दैट विल बी डिलीवर्ड टू द लोड. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. व्हाट इज द पावर दैट विल बी डिलीवर्ड टू द लोड. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर इसको मैक्सिमम पावर डिलीवर होना है तो पावर कितना होगा. Suppose that if I take it as that the current that is flowing through this circuit, जो हमने modify कर दिया, जो पहला circuit था उसको मैंने modify कर दिया. Let us understand or let us come to the conclusion that the current that is flowing in this circuit, the modified circuit, which is the Thevenin circuit, okay, circuit, which is nothing but the Thevenin circuit, is like this, and the current that is flowing through this is I. Okay, call it as I itself. सर ये जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, I, जो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा. ठीक है, देन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, पावर टू द लोड, PRL. पावर टू द लोड, पावर टू द लोड इज ऑलवेज व्हाट, पावर इज इक्वल टू व्हाट. You can unmute and tell. Power in terms of current and resistance. What is the formula? I square R. Very good. Very good. So can I write it as I square into RL, because हम लोग किस पावर की बात कर रहे हैं? We are talking about the power of load. PRL लिखा देखो मैंने यहाँ पे. I have written here it as PRL. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? Power delivered to the load. ठीक है ना? When I am talking about the power delivered to the load, then the resistance that I am supposed to take is RL. क्योंकि मैं वहां की बात कर रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस को कितना पावर मिल रहा है. तो मैंने क्या नाम दे दिया, PRL is equal to the current that is flowing through RL, I square multiplied by RL. Now what is I equal to, tell me. अगर आप सर्किट देख रहे हो तो I equal to क्या रहता है, what is current equal to? Can we say that current equal to voltage divided by total resistance according to Ohm's law? Voltage divided by total resistance can be the current that is flowing in this circuit. Can I write like this, total voltage divided by total resistance? Yes, ठीक है. तो what is the total voltage in this circuit? देखो आप ध्यान से, total voltage कितना है, VTH. That is the only source that we have, and that is only voltage that we can have in this circuit, मतलब as a source. ठीक है ना, divided by total resistance. If you look at these two resistances, they are in series with each other. ये देखो, यहां से आने वाला करंट ही यहां से जाएगा, तो दोनों में से सेम करंट जा रहा है, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के. Can I say that RTH is in series with RL, right? Then the total resistance will be what, RTH plus RL. Agreed with this? Total resistance of the circuit, total resistance of circuit, can I call like this? Yes. जितना समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, so that we can go ahead quickly, and I am expecting that everybody should understand. Okay, fine, that's good. So here instead of I, देखो मैं I के बदले क्या लिख रहा हूँ, I is equal to VTH divided by RTH plus RL, because we are having this as the two resistances which are in series with each other. Now call this as equation number 1, call this as equation number 2. Now what we are supposed to do, put equation number 2 in 1, right? Put equation number 2 in 1. अब मुझे बताओ then what will be PRL equal to? Can I write PRL as this? I के बदले substitute करो, substitute this here. So this becomes VTH divided by RTH plus RL, I के बदले, right, का square, and then multiplied by RL. Everybody is happy with this? Any doubt that you are having? What I have done, simply I have put the value of I which was there. So this is the equation जिसके चलते अभी हम लोग आगे का पूरा derivation करेंगे. This is the very very important equation that we have calculated
and this equation will be the base equation for us to understand what is the condition for maximum power transfer. Agreed with this? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं. Take the screenshot of this, everybody. Take the screenshot of this. Very important. Like the slide is this, so take the screenshot of this. Okay, shall I move ahead? सबने ले लिया screenshot? Shall I move ahead? Okay, fine. So मैं अभी यही डायग्राम वापस से ड्रॉ कर रहा हूं. This is RL, this is RTH, this is VTH. Okay, and this is the current which is flowing through it. I call it as RL, and this is the point A and this is the point B. इसके पीछे का सर्किट कौन सा है? थेवेनिन सर्किट है. और इसके आगे का जो सर्किट है दैट इज द लोड सर्किट. जो भी होगा वहां पे उसके हिसाब से हम लोग लोड बनाएंगे. सो आई कैन कॉल इट एज अ लोड सर्किट. ओके, अब देखो मुझे कुछ तो चेंजेस करना है कि ये सोर्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ तो चेंजेस करना है जिसके चलते ये सोर्स जो है अपना मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सके. किसको? आरएल को. सो आई कैन नॉट चेंज दिस आरटीएच, क्योंकि आरटीएच इज द प्रीवियस व्हाट आई कैन से सर्किट, जो ऑलरेडी फिक्स सर्किट है. जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि थेवेनिन थ्योरम हम कब बनाते हैं? व्हेन वी नो दैट द प्रीवियस सर्किट इज नॉट चेंजिंग, ओनली द लोड इज चेंजिंग. क्या चेंज होता है हमारे? थेवेनिन कब बनाते हैं हम लोग? व्हेन वी फील दैट कि हमारा लोड कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला है. सो कन्वर्ट द होल सर्किट अदर देन लोड इनटू अ सिंगल source and a single resistance circuit, so that only if the load is changing then it will be very easy for us to calculate the current, power or the voltage across the load, because only the load is changing. तो लोड ही चेंज करो ना, बाकी सबको तो कॉमन रखो जो कॉमन है. ये हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते ऐसा मान के चलेंगे. वी कैन नॉट चेंज दिस सर्किट. Okay, we cannot change this circuit. What we can change is only the RL. This is the flexibility that is given to us. ऐसा मान के चलो कि एक पजल है, वो पजल क्या बोलता है कि यू कैन नॉट चेंज दिस पार्ट बट यू कैन चेंज दिस पार्ट. ठीक है ना? इफ आई कैन चेंज दिस पार्ट देन आई विल शो इट लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मैं उसको चेंज कर सकता हूं. ओके, बिकॉज आई कैन चेंज दिस वैल्यू, सो दैट्स व्हाई आई हैव शोन इट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्या बोल दिया मैंने उसको? वेरिएबल रेजिस्टेंस. अब आप बोलोगे सर वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा होता है? कौन सा रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है सर? एनीबॉडी? कभी वेरिएबल रेजिस्टेंस देखा आप लोगों ने? देखा और उसको यूज भी किया है. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देखा है तो आपने यूज भी किया होना चाहिए. किसी ने किया आज तक वेरिएबल रेजिस्टेंस? किसी ने यूज किया है? कहां पे संदीप? Where you have used the variable resistance? Please give an example. Very good. You have used the variable resistance in pot. आप फैन का स्पीड ज्यादा कम करते हो कि नहीं? फैन का स्पीड, यस वेरी गुड संदीप. आप फैन का स्पीड ज्यादा कम करते हो कि नहीं? रेस्ट ऑफ द पीपल. ओके, यू चेंज द स्पीड ऑफ द फैन. एवरीबॉडी, कैसा होता है भाई? मुझे अगर फैन का स्पीड चेंज करना है तो मुझे किसको कंट्रोल करना चाहिए? किसको कंट्रोल करना चाहिए मुझे कि फैन का स्पीड चेंज हो? What parameter shall I control so that the speed of the fan will vary? Come on, jaldi, fast. What parameter shall I control so that I should feel कि the speed of the fan will change? Ronak, it is not resistance that you want to control. It is the current that you want to control through the fan. मैं अगर करंट को ज्यादा कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसको एनर्जी ज्यादा कम मिलेगी. यस और नो? वेरी गुड ऐश्वर्या. करंट को ज्यादा कम करूंगा कि नहीं रौनक? करंट ज्यादा गया तो ऑटोमेटिकली स्पीड ज्यादा हो जाएगा. करंट कम गया तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाएगा. अगर मुझे करंट को ज्यादा कम करना है तो मैं किसको कंट्रोल कर सकता हूँ? वोल्टेज तो आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है. जहां पे आपने प्लग डाला है या जहां से आप सप्लाई ले रहे हो
आपका वोल्टेज तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना. व्हाट इज दैट वोल्टेज? अराउंड 230 टू 240 वोल्ट्स. इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड. तो वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते, करंट को आपको चेंज करना है, तो आपको किसको चेंज करना पड़ेगा? आर और जेड, रेजिस्टेंस और इंपेडेंस ऑफ द सर्किट. अग्रीड विद दिस? अगर आप आर को ज्यादा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब करंट क्या होगा? लेस करंट विल रीच टू द फैन. If you decrease the resistance, more current will reach to the fan. Are you understanding that, everybody? So what you are changing here is that you are changing either the resistance of the circuit or the impedance of the circuit, right? So if you increase the value of R, the current will decrease. If you decrease the value of R, the current will increase. Okay, are you understanding? Are you understanding? So with this knowledge, what can I say? That I can vary the value of R. अब R का वैल्यू कैसे वेरी करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखा दिया है. तो जो आपको जो फैन में ऐसा वाला एक बटन रहता है जिसको आप ऊपर एक कवर डाल के इसको घुमाते रहते हो, अंदर एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है जो वेरी करता है आपके. आप जैसे आप नॉब घुमाते हो, द करंट विल वेरी. जब आप उसको 5 नंबर पे लेके जाते हो तो रेजिस्टेंस इज मिनिमम और द इंपेडेंस इज मिनिमम. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. when you put that knob at position 5, then resistance is minimum. When you put that the knob at kahan pe, the position number 1, the resistance is maximum. This is I am saying that when you put it as 0.5 and this is when you put it at point number 1. knob को जब आप 1 पे रखते हो तो resistance और the impedance, I am calling it as resistance because हम लोग resistance के साथ deal कर रहे हैं, but later we will understand what exactly is the impedance. Impedance is a very beautiful phenomenon. Okay, जिसको हमको अंडरस्टैंड करना है, बट विल डू इट लेटर. बट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि you can vary the resistance and control the current, and because I am controlling the current that is reaching to the fan will be maximum or minimum depending upon क्या हम बीच में क्या कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? So similarly here also what we can vary the resistance. ठीक है ना? अब चलो हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग ऑलरेडी करना चाहिए, we should do that experiment, but we'll do it in the lab. But till then what I'll do is that I'll just show you how exactly the things vary. ठीक है ना? This is what we need to do in the lab. अभी ये मान के चलो कि हमने लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट कर लिया है, we have done that. I'm just showing you the readings of or the nature of the graph that we'll get when we vary RL and then how the power will be calculated. Suppose if I'm calculating the power and this is the load resistance and this is the current that I'm noting it down, ठीक है ना? So what will be the power that I'll get? ठीक है ना? Suppose मैंने रेजिस्टेंस को 0 रखा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को 0 रखा है, right? Then definitely some of the current will flow from this to this. What will be the power? Tell me. If I make this resistance as 0, what will be the power delivered to RL? What will be the power delivered to RL? Come on, fast. If the resistance is 0, what will be the power delivered to RL? Use the formula. Use the formula. Rutuja, I said resistance value is 0. What is PRL equal to? What is the formula? I'll write it here. PRL is nothing but I square into RL. Now see, गड़बड़ मत करो, पहले देखो, समझो. What is P equal to? I square into RL. अगर मैंने RL ही 0 कर दिया, ओमकार प्लीज पहले देखो, अभी भी गड़बड़ मत करो. I square into RL, the value of RL is 0. 0 into anything, whatever may be the I square. What should be the answer? It cannot be infinity, Omkar. It should be 0. I square. चलो I square मेरा 6 एम्पियर आ गया. 6 एम्पियर square is 36. 36 multiplied by RL, which is 0. What shall be the answer? Omkar, what shall be the answer? यहाँ पे आपने RL 0 कर दिया. देखो सर्किट कैसा बनेगा जब आप RL 0 करोगे, तो ऐसा बनेगा आपका सर्किट. एवरीबडी एग्रीज विद दिस? ये आपका सर्किट बन गया. VTH, RTH एंड RL इज 0. ठीक है ना? आपने उसको शॉर्ट कर दिया, RL इज 0. तो मुझे बताओ करंट तो आएगा कुछ ना कुछ. यस और नो ओमकार?
you'll get something as current. Suppose 4 एम्पियर का करंट आ गया, तो पावर डिलीवर टू आरएल, आरएल तो जीरो है ना, तो पावर डिलीवर टू आरएल कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू जीरो. व्हाट विल बी द आंसर? जीरो. अग्रीड? यस, वेरी गुड ओमकार. सो इनिशियल पावर विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो व्हेन आरएल इज जीरो. देखो आरएल इज जीरो, व्हाट विल बी पीआरएल? इट विल बी जीरो. अग्रीड विद दिस? ओके. whatever may be the value of I, I don't know. मैं यहाँ पे सिर्फ एक जनरल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. whatever may be the value of I. ठीक है. अब देखो यहाँ पे मजा क्या हो रहा है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉजिकली समझो. अभी अभी मेरे पास वैल्यूज नहीं है, मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ. स्लोली आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आरएल. व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ करंट? व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ करंट? स्लोली आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आरएल. जैसे जैसे मेरा ये इस एंड का आरएल बढ़ते जाएगा, ये वाला करंट क्या होते जाएगा? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. निरंजन, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आरएल. आरएल को मैं बड़ा कर रहा हूं. जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, मेरा करंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? संदीप, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आरएल. कम होना चाहिए. वेरी गुड. मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पूरे सर्किट का करंट कम ही होना चाहिए ना यार. देखो दोनों सीरीज में है, आरटीएच एंड आरएल आर इन सीरीज. दोनों ऐड होंगे ना टोटल रेजिस्टेंस में. जब टोटल रेजिस्टेंस ही बढ़ते जा रहा है तो करंट क्या होते जाएगा? इट विल डिक्रीज. देन द पावर, देखो यहाँ पे कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है. करंट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी करंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. ठीक है ना. तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसा मजेदार आपको आउटपुट देगा कि एट थोड़ा थोड़ा ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर बढ़ते जा रहा है. ये पूरा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये अपने पीक में पहुंच जाएगा. इट विल बी द हाईएस्ट पावर दैट यू कैन हैव टू दैट पर्टिकुलर आरएल. कौन सा? कोई तो एक ऐसा वैल्यू आएगा, आई डोंट नो व्हाट दैट वैल्यू इज. तो ठीक है, मैं उसको अभी फिलहाल आर मान के चल रहा हूं. कोई तो एक ऐसा वैल्यू ऑफ आरएल आएगा जहां पे आप फाइंड आउट करोगे कि द पावर इज व्हाट? मैक्सिमम. द पावर विल बी मैक्सिमम. And if you still increase the value of RL, still the current value will decrease, but the multiplication will again start decreasing. देखो यहाँ पे क्या हो रहा था? Power was increasing. यहाँ पे क्या होगा? Power was decreasing. और maximum किधर है? एक पॉइंट ऐसा आएगा, I don't know what is that point, I'll call it as R. ऐसे एक वैल्यू ऑफ R के लिए ऐसा आएगा जहां पे you will get the maximum power, and then again this is decreasing. फिर आप जैसे जैसे RL बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा. अगर आपने आरएल इतना बड़ा कर दिया, आरएल इज इक्वल टू इंफिनिटी, एक एग्जांपल, हम नहीं कर सकते बट एक एग्जांपल मान के चलो कि मैंने आरएल इक्वल टू इंफिनिटी कर दिया है. व्हाट शैल बी द पावर? टेल मी. आरएल इंफिनिटी मतलब ये सर्किट आपका ओपन हो गया है. देखो व्हेन आई से आरएल इज इक्वल टू इंफिनिटी, आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा. ध्यान दो सब लोग. आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? जीरो. देन जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? अब देखो यहाँ पे करंट जीरो हो रहा है, उसके चलते मेरा पीआरएल जीरो हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैंने रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा दिया कि करंट ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट. एंड इफ द करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, देन एनीथिंग व्हिच इज ऑलमोस्ट जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी बिग वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे मैंने लिखा आइडियली इंफिनिटी, बट आइडियली इंफिनिटी थोड़ी ना कर सकते हैं. हम इतना बड़ा रेजिस्टेंस कर सकते हैं कि करंट इज ऑलमोस्ट जीरो. एंड इफ द करंट इज जीरो, देन आई स्क्वायर इंटू आरएल विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट? इफ द करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, देन फॉर्मूला देखो, आई स्क्वायर इंटू आरएल, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ पीआरएल? जीरो. देखो इनिशियली रेजिस्टेंस के चलते जीरो बना, फाइनली करंट के चलते जीरो बन रहा है, क्योंकि करंट जीरो हो रहा है. रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, हाईएस्ट. बहुत बढ़ा दिया आपने. ऑलमोस्ट करंट इज 0.00000 समथिंग, एंड 0.000 समथिंग कुछ भी रहने दो, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आरएल विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. तो मैं क्या बोलता हूं कि एट सम पॉइंट दिस करंट विल अगेन बिकम इक्वल टू जीरो. एंड दिस पीक वेयर आई एम गेटिंग द मैक्सिमम करंट, आई विल कॉल इट एज आई मैक्स. व्हाट आई एम कॉलिंग इट एज maximum current in the sorry, it is not Imax, it is PL max. देखो sorry, it is not Imax, it is PL max, maximum power in the circuit. This point I will call it as
PRL max. समझ में आ गया सबको? Everybody understood this? अभी तक का जो कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताया, everybody has understood this, the concept that I have told to you? फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझो, बाद में मैथ्स अप्लाई करेंगे. कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. Once you understand the concept, then applying the mathematics will be very easy for us. Unless and until you understand the concept, आप mathematics को कितना भी लगा लो, आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है, and you will not understand कि what we are doing. ठीक है ना? यहाँ पे हमको ये समझना है कि हम कर क्या रहे हैं exactly और क्यों कर रहे हैं. ठीक है? May not, ये ऐसा भी हो सकता है कि आज हमारा ये पूरा का पूरा डेरिवेशन खत्म नहीं होगा, but at least you understand the concept. Once you understand the concept, MCQs will become very easy for you. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज जो डाले जाते हैं वो पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहते हैं, वेयर यू नीड टू लॉजिकली थिंक एंड टिक मार्क. थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ता है, ज्यादा मैथ्स नहीं. दे एक्सपेक्ट दैट द मैथमेटिक्स शुड बी मिनिमम, जो आप ओरली कर सको मैक्सिमम. कॉन्सेप्चुअल शुड बी मोर. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू विल अंडरस्टैंड अमंग दिस, बट अगर आप वापस से देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली 3-4 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है. ये आपको समझाने के लिए था ऊपर वाला. ये हमारे रीडिंग्स है और ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया डिपेंडिंग अपॉन दिस सर्किट व्हेन आई एम वेरिंग द रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे हम लोग क्या वेरी कर रहे हैं? वेरी व्हाट आई एम वेरिंग हियर? resistance RL, load resistance. Then I am getting this graph. This graph is the result of when I'll vary the RL, if I note down the current, and then if I'll find out the power delivered to the load, then this kind of graph is expected. कि वो पहले बढ़ेगा सर, पावर बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा, एंड देन अगेन द पावर विल रिड्यूस, and finally it should go to 0, approximately equal to 0.